We are waiting for others to join, guys. Then we'll start. As we're waiting for 2-3 minutes for others to join. Meanwhile, if anyone has any questions, please let me know. Whatever we discussed in these 2 days or whatever we are going to discuss, if you guys check syllabus recording, किसी भी तरह का कोई भी question है तो do let me know. Two more minutes, guys. We are waiting and we'll start at 16:05. Any questions meanwhile, please ask me. This is again one of the servers we have on our screen. We are still not starting with Azure. Azure के लिए still time है. Wednesday, Thursday. I think ये पूरा week हम Azure start भी नहीं करेंगे because I want basics to be clear. उसके बाद Azure पे जब हम पढ़ेंगे तब you guys will understand it. So
today we will see a few more things about infrastructure, server. Vaibhav, there is a link in our group description on WhatsApp's group. I'm talking about WhatsApp group description. It has a link for Google Drive. If you click on that, Google Drive will have a folder named recordings. Yes, we have recordings for these 2 sessions, and this is also being recorded. So yes, you will have recording. One more minute, guys, and then we'll start. Okay, guys, so let's start. Before we discuss further things, anyone has any questions, any doubt, or anyone uh, did try whatever we discussed in these 2 days? कुछ भी try किया अपने basic servers के बारे में? Because understand one thing, guys, no matter कितना detail में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, unless you go back and check these things again, वो बहुत ज़्यादा mind में रहेगी नहीं और interview में help नहीं करने वाले हैं. So please make sure whatever we read here, please make sure that you go and study that. And if you have any questions, then you can ask them. So before I proceed with today's session, do you have any questions? So I suppose No, we do. sir. Yeah, I suppose we don't have any questions. So let's proceed. So yesterday we were discussing an application. For example, we were discussing Swiggy. Let's say these are users. These are users, and here we have an application, Swiggy. Uh, and I did explain it to you that to run one single or small application, we required plenty of things, many things. We require plenty of servers. So to run one application and just a website, a front end of that एप्लीकेशन में बैकएंड में एक अलग चीज होगा, डेटाबेसेस अलग हो गए, होटल से जो उनकी कनेक्टिविटी है वो सब अलग चीज है, बैकएंड हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल वी आर जस्ट डिस्कसिंग फ्रंट एंड. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट एंड? व्हेन आई से फ्रंट एंड, वो जो वेबसाइट आपको दिखती है ना, जिसमें पिक्चर्स दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, मेन्यू दिख रहा है, द मोमेंट यू एड समथिंग इन योर कार्ट और ऑर्डर समथिंग, देन वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जितना आप सिर्फ ब्राउज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड. तो उतना देखने के लिए ये मिनिमम 50 से 60 सर्वर्स जो है रन करने पड़ते हैं, एक एक उतना सा वेबसाइट रन करने के लिए. आई मीन इन अ प्रॉपर मैनर, एक प्रोडक्शन वाले के लिए. टेस्टिंग के लिए तो आप लोगों ने देखा दैट आई हैव अ सर्वर, यस्टरडे यू ट्राइड एंड यू यूज्ड द आईपी एड्रेस, वो चल रहा था. बट जब उसमें थाउजेंड्स एंड बिलियंस हिट होने लगेंगे तो एक सर्वर से काम नहीं होगा. देन मुझको बैकअप में सर्वर चाहिए होगा. हियर द बैकअप मतलब वो वाला बैकअप, मैं टेक्निकल बैकअप नहीं बोल रहा हूँ, बैकअप एज इन बस एक कि इन केस एक सर्वर बंद हो जाता है तो क्या होगा मेरे पास, रिजर्व टाइप, उस बैकअप की बात कर रहा हूँ. ओके, सो इस उस पर्सपेक्टिव से वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 50 सर्वर्स वगैरह इस तरह से लगते हैं. सो यहाँ पर 50 सर्वर्स, बैकएंड में कुछ सर्वर्स, देन डेटाबेसेस में कुछ सर्वर्स, देन कनेक्टिविटी के लिए कुछ सर्वर्स. सो ओवरऑल यस्टरडे आई टोल्ड यू गाइस कि एक छोटा एप्लीकेशन रन करने के लिए मिनिमम 1000 सर्वर्स जो है वो चाहिए होते हैं एक स्विगी जैसे एप्लीकेशन के लिए. सो वो सारे 1000 सर्वर्स का ध्यान कोई ना कोई रखेगा, उसके लिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर टीम. 1000 सर्वर्स है तो उनमें कनेक्टिविटी होगी, उनमें नेटवर्किंग होगा,
बहुत सारी चीजें होगी उनमें, राइट? सो व्हेन यू डू दिस, when you have this infrastructure, this large infrastructure, so you will required टीम्स, नेटवर्किंग टीम्स, विंडोज वाली टीम चाहिए होगी आप लोगों को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इश्यूज पे करे, देन स्टोरेज टीम, बैकअप टीम, बहुत सारी टीम, सिक्योरिटी टीम चाहिए होगी आप लोगों को। सो देर आर प्लेंटी ऑफ टीम, सो दिस इज हाउ एन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। ये सारी टीम्स होती है, ये सब होता है। देन मैंने फिर आई डिड एक्सप्लेन ये कैसे बनता था, ये 50 सर्वर्स जो है, हाउ हाउ दे वर्क और हाउ डू वी डिप्लॉय देम, वो होते कैसे थे। तो 50 हार्डवेयर होते हैं सर्वर के, सर्वर हार्डवेयर हम लोगों ने, आई शोड इट टू यू गाइस, एक इमेज बताई थी मैंने। वो डेल क्या था, उसमें एचपी के भी आते हैं सर्वर्स, आई शो इट टू यू गाइस। yesterday which we saw was this Dell server. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन वर्किंग ऑन डेल सर्वर्स, इसलिए मैंने डेल के बता दिया आप लोगों को। ये डेल के हार्डवेयर सर्वर्स है, जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करते हैं, दैट देन इट बिकम्स अ सर्वर, जहां पर आप देन वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो हम धीरे धीरे देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट होस्टिंग बहुत फ्रिक्वेंटली और मोस्टली यूज है, मतलब कोई एप्लीकेशन हो कुछ भी, अल्टीमेटली वेबसाइट उसका होता ही है, बी इट स्विगी, जोमेटो, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी हो, एक वेबसाइट अल्टीमेटली होता ही है। सो एन एप्लीकेशन, इसका मतलब एक वेबसाइट डेफिनेटली होगा, इसलिए मैं बार बार वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ, अदरवाइज इट इज नॉट ओनली वेबसाइट, एप्लीकेशन दूसरे भी होते हैं। दीज आर एचपी सर्वर, एचपी के भी सर्वर होते हैं, कोई खास अलग है नहीं। एचपी एक कंपनी है, डेल एक कंपनी है, जैसे आपके लैपटॉप है एचपी के है, डेल के है, सोनी के है, वैसे ही यहाँ पर सिस्को के भी हो गया, आई एम श्योर। ये सिस्को के सर्वर्स है, राउटर्स जैसे आते हैं, सिस्को के सर्वर्स भी आते हैं सिस्को के। आईबीएम के भी अपने सर्वर्स होते हैं, हार्डवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आईबीएम के सर्वर्स है। ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसे देख के आप लोगों को कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, और वो बहुत माइनर डिफरेंस उसमें हम जाने भी नहीं वाले, दैट इज नॉट आवर जॉब, अज़्योर में हमारे वो किसी काम का भी नहीं है। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम लेटिंग यू नो, जस्ट बिकॉज वी डिस्कस डेल, दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ डेल के आता है। वी हैव एचपी एंड प्लेंटी ऑफ, लेट मी सी, okay, and plenty of players are there who provide this hardware, hp के है, dell के है, ibm के है, cisco के है। Okay, so these are the types which we have. So how it used to work in initially, कि एक एक सर्वर हम लाते थे, उसको रैक में फिट करते थे, और एक सर्वर पे we used to install one operating system, एक सर्वर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हार्डवेयर वाला सर्वर एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली हियर इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ गलती से ज्यादा बड़ा लेकर आ गया सर्वर, कोई रैम वगैरह एक्स्ट्रा लेकर आ गया, तो मेरा वो वेस्टेज है। कम लेकर आ गया, सो जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट होता होगा एक रैम मुझको चेंज करने के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट लेगेसी, ठीक है, फिलहाल मैं क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन पे नहीं आया हूँ मैं आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि कैसे होता था, हाउ इट स्टार्टेड। सो यू सी, दीज आर द रैक्स, इसमें ये जो लगे हुए सर्वर है। अब एक बेसिक सर्वर में कुछ चेंज करना हो, तो समवन विल हैव टू गो टू दैट डेटा सेंटर, वहां से उस रैक में से उस सर्वर को खींच कर निकालना पड़ेगा, उसमें रैम फिट करनी पड़ेगी, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो मिनिमम आवर्स जो है, मिनिमम 2 से 3 आवर्स चले गए, 2 से 4 घंटे आप लोगों के चले गए। उसमें बाद भी रैम फिट होने के बाद फिर हमको चेक करना, तो इतनी देर अगर हर एप्लीकेशन बंद होने लग गया, इतनी देर अगर 2 से 4 घंटे स्विगी बंद रखने लग गया अपने आप को, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वैसे ही उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इनसे फर्दर जाते अगर हम लोग, जो हमारे ये एप्स होते हैं, शेयर मार्केट वाले एप्स विच आते हैं, जेरोदा है, शेयर खान है, देयर वेबसाइट, ये तो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, इनका कमीशन इतना होता है। यही अगर 2-4 घंटे के लिए हो जाएगा, इट्स नॉट ओनली कमीशन दे आर गेटिंग हैम्पर्ड ऑन, प्लस कस्टमर सर्विस। लेट्स से दैट आज जो है क्लोजिंग टाइम के वक्त शेयर का प्राइस जो है काफी कम हो रहा है किसी कंपनी का, एंड एज अ कस्टमर ऑफ जेरोदा आई वांट टू परचेज दैट, मैं उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, एंड जस्ट बिकॉज जेरोदा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनका एप्लीकेशन उस टाइम पे डाउन था। सो इट्स नॉट ओनली दे आर नॉट गेटिंग हैम्पर्ड विद देयर कमीशन, यहाँ पर एक कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी होगा। आई विल नेवर एवर यूज जेरोदा, बिकॉज उनकी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया। इफ आई एम अ सीए, मुझको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है नंबरिंग का और हर चीज का, सो आई न्यू एग्जैक्टली कहाँ पर मुझको क्या परचेज करना था, एंड आई कुड नॉट डू दैट जस्ट बिकॉज एप्लीकेशन वाज गेटिंग अपग्रेडेड, उनका कोई रैम अपग्रेड हो रहा था, कोई डाउन हो गया, कुछ हो गया। सो आई विल नेवर एवर डू बिजनेस विद देम, और उसके बाद माउथ पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा ये होगी, बैड पब्लिसिटी उनकी।
सो टू अवॉइड दैट, वो सब करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, उसी तरफ हम काम कर रहे हैं। सर्वर्स में कोई डिस्प्ले नहीं लगा होता है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आई हैव टोल्ड यू गाइस ऑलरेडी। हम सिर्फ बेसिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो सर्वर में वैसे ही कोई डिस्प्ले नहीं लगा होता है, इट्स नॉट दैट स्कोप नहीं होता है, स्कोप होता है इफ यू वांट, जैसे आपके हर लैपटॉप पे, हर इस पे डेस्कटॉप पे एक डिस्प्ले होता है, यू कुड फिट दैट, लेकिन वहां कोई काम की चीज नहीं है। सो सर्वर्स को हैंडल कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिमोट लेकर। सो yesterday आई showed you guys कि रिमोट कैसे लिया जाता है। इन हर सर्वर का एक एक कोई आईपी होगा, तो उस आईपी का बस यहाँ पर आप जाते हो, आरडीपी एक टूल है, and you open that RDP tool using this command mstsc. The moment you hit that, you will see this. I have two screens, तो कभी कभार वहां पर जा रहा है, hence I'm dragging this. Plus, other than that, you can open your start menu and just type RDP. Just type RDP and then you will see this tool. So using this tool, you could take remote of any server. आपको क्या चाहिए होता है, उसका बस IP एड्रेस चाहिए होता है। Now we'll discuss when we'll discuss networking, तब हम डिस्कस करेंगे कि हर एक पे यूनिक IP एड्रेस कैसे हो रहा है, किस टाइप का IP एड्रेस आता है, ठीक है। बट यू विल हैव दिस इन्फॉर्मेशन जब भी आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करोगे, चाहे वो 10,000 सर्वर्स भी क्यों ना हो, कोई ना कोई सिस्टम होगा आपके पास जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस सर्वर का IP एड्रेस ये है, या फिर नाम से भी ले सकते हो। लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे के आईपीज याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वी यूज डीएनएस। जब हम डीएनएस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि डीएनएस एग्जैक्टली होता क्या, बट डीएनएस इज अ वे जहां पर आईपी को आप कन्वर्ट कर सकते हो नाम में। लाइक facebook.com, व्हाट इज अ facebook.com? अल्टीमेटली बैकग्राउंड में facebook.com जो है एक आईपी एड्रेस ही है। yahoo.com, ये सब जो है एक आईपी एड्रेस है। लेट्स से इफ आई ट्राई टू ब्राउज, अब मैं इस पे जब करूंगा ब्राउजर पे तब वो दिखेगा नहीं, बट सी यहाँ पर जैसे ही मैं ब्राउज कर रहा हूँ ना, तो अल्टीमेटली बैकएंड में जो है ये एक आईपी एड्रेस ही है। जस्ट बिकॉज लोग इतना आईपी एड्रेसेस याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए वो, यू सी, facebook.com. I hope you guys understood. I'm not going too fast, am I? Let me know if you guys did not understand anything. Yes guys, yes, no, maybe. Do you want me to slow down or is it fine? Fine, so ठीक है। if you don't understand anything, I have told you already, do not wait कि क्लास खत्म हो और when I stop, just stop me and ask. अदरवाइज ऐसा होगा कि पहले 4 कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ, 5वें पे आके आप बोलोगे कुछ भी नहीं समझ में आया। हाँ, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि क्लास टाइमिंग वगैरह ये ऐसे इश्यूज के लिए डू नॉट इंटरप्ट। टेक्निकल एनीथिंग इज देयर, डू नॉट हेजिटेट टू इंटरप्ट मी। ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस कि इन आईपीएस वगैरह से आप जो है रिमोट ले सकते हो किसी भी सर्वर मशीन का। एंड मोर देन आईपी वी कुड यूज नेम आल्सो, जैसे यहाँ पर facebook.com में यूज कर रहा हूँ, बैकएंड में एक आईपी ही है। नाउ हाउ कैन वी नेम दिस कि किसी आईपी के अगेंस्ट कोई नाम कैसे असाइन होता है, दैट वी विल सी व्हेन वी कंप्लीट आवर डीएनएस वाला टॉपिक। नेटवर्किंग का ही एक पार्ट होगा, ठीक है। सो दीज मेनी सर्वर्स आर हियर। अब ये तो एक काम बता दिया मैंने कि हार्डवेयर खींच के निकालना है, उसमें एक रैम चेंज करना है और उसमें एक फैन चेंज करना है, कुछ भी करना है, हार्ड डिस्क अपग्रेड करना है। बट उसको लगाने के बाद सॉफ्टवेयर एंड पे भी कुछ ना कुछ हम लोगों को चेंज करना ही पड़ता है। जस्ट बिकॉज मैंने एक फिजिकल हार्डवेयर किसी को अटैच कर दिया, दैट डज नॉट मीन के डायरेक्टली वो काम करने लगेगा। अगेन आई हैव टू गो एंड हार्ड सॉफ्टवेयर लेवल पे भी कुछ उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। So to do that, sorry, either we can take remote of that virtual machine, और रिमोट में कुछ इश्यू होता है तो यहाँ पर ऐसे डेटा सेंटर में लोग जाते हैं और ये दिख रहा है ट्रे, इसके ऊपर लैपटॉप रखते हैं, लैपटॉप में एक लैन केबल इंसर्ट करते हैं, देन दे गेट कनेक्टेड और इसका डिस्प्ले देन इसके ऊपर दिखने लगता है। देन हाउ इट अपीयर्स, दिस इज हाउ इट लुक्स। कोई बहुत फैंसी नहीं दिखता है, दिस इज हाउ इट लुक्स, एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट लुक्स। ये सर्वर है, एग्जैक्टली यही दिखता है। हाँ, इसके सर्वर जब होंगे हमारे लिनक्स सर्वर जो होंगे, लिनक्स सर्वर थोड़े से अलग दिखते हैं। आई शो इट टू यू। लिनक्स मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टॉल किया है आज, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लिनक्स भी मैं आई लेट यू नो गाइस कि कैसे दिखता है, ठीक है। बट दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स रिमोट लेने के बाद, ठीक है। बट डेटा सेंटर्स जो है, मोस्ट ऑफ द डेटा सेंटर्स जिन यूजर्स के लिए हम काम कर रहे हैं, जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जहां पर पैकेज आपको अच्छा मिलेगा, सर्वर्स हर जगह होते हैं। एसबीआई के भी सर्वर्स होंगे, हर बैंक के सर्वर्स होंगे, लोकल जितने कंपनी है हमारे इनके भी सर्वर्स होंगे, ठीक है। बट लोकल डेटा सेंटर में आप काम कर रहे हो, यू डोंट गेट उतना अच्छा पैकेज मिलता नहीं है, ठीक है। लोकल यहाँ के अगर आप सर्वर एडमिन वगैरह के देखते हो, जो हमारी लोकल आईएस टीम होती है,
वो सर्वर भी हैंडल करते हैं वो लोग, लेकिन लोकली उतना ये नहीं मिलता नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग फॉर यूएस कंपनीज, यूके कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, उनके जो डेटा सेंटर्स होते हैं आप उनको हैंडल कर रहे हो। अब हर एक छोटी चीज के लिए यहाँ से उठ के आप यूएस तो नहीं जाने वाले हो, राइट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम काम जो है 90% काम डेटा सेंटर का रिमोट पे ही चलता है, रिमोट लेकर ही चलता है। 10% कभी कभार ऐसा इश्यू होता है जहां पर वायर ही क्रैक हो चुकी है, जहां पर फिजिकल इंटरवेंशन इज नेसेसरी, देन ऑन साइट टीम होती है। जैसे मैंने सर्विस डेस्क में डिस्क्राइब किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर ऑन डे 1, डू यू गाइस रिमेंबर के व्हाई डू वी हैव ऑन साइट टीम? दैट्स नॉट योर L2 टीम नहीं होता है, वो आप लोगों का कोई नेक्स्ट लेवल का टीम नहीं होता है, राइट? बट व्हाई आर दे देयर ऑन साइट पे क्यों है? समटाइम्स कोई रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि फिजिकल इंटरवेंशन इज नेसेसरी। सो इफ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग ऑन दैट सर्वर, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जो है किसी को वहां पर ऑन साइट को बोलना पड़ता है, एंड देन दे विल गो टू दिस डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में एंट्री बहुत इजी नहीं है, रोज रोज कोई जाता नहीं है, पूरा सील पैक होता है, ये डस्ट प्रूफ होता है, एयर प्रूफ होता है, बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट होता है। आप जाते भी हो कभी तो आपको वो शूज के ऊपर भी पहनने के लिए मास्क दे देंगे और मे बी शूज निकलवा देंगे, काफी सारी चीजें जो है ये होती है उसमें सॉरी, काफी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। इज इट क्लियर टिल हियर? तो डेटा सेंटर में विजिट बहुत रेयर होता है, आप लोग यहाँ से ये चीजें जो है चेंज करते हो। तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे यू गाइस वर्क, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स है, तो इस तरह से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है? एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पर एक एक सर्वर में एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा कॉस्टली होगा। देन इसके बाद आया वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। वर्चुअलाइजेशन थोड़ा बहुत मैंने कल एक्सप्लेन किया। वर्चुअलाइजेशन क्या है? इन्हीं सर्वर्स पे जो एक एक हार्डवेयर सर्वर है, जिसके ऊपर आई कुड हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर VMware का एक कल मैंने बताया था, एंड देन आई हैव वन माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्चुअलाइजेशन का ये है, दैट इज कॉल्ड हाइपर वी। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है। अब ये मेरा एक फिजिकल मशीन है, दिस इज माय वन फिजिकल मशीन। इस फिजिकल मशीन में मैंने एक हाइपर वी का फीचर यूज किया और इसके ऊपर मैं दो और मशीन यूटिलाइज कर पाया। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो दिस इज वन सर्वर आई हैव ऑन माय फिजिकल मशीन। ये मेरे एक फिजिकल मशीन के ऊपर ऑलरेडी है, एंड दिस इज अनदर सर्वर आई हैव, अगेन दिस इज ऑन माय फिजिकल मशीन। तो मैं एक ही हार्डवेयर को मल्टीपल तरह से यूज कर रहा हूँ। 16 GB का मेरी कैपेसिटी थी, सो व्हाट आई डिड, 4 GB मैंने अपने फिजिकल के लिए रख लिए, और 4 GB मैंने लिनक्स के लिए दे दिया, और 4 GB विंडोज के लिए दे दिया। तो स्टिल मैं मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ बाकी है यूज करने के लिए। सो now see, I am utilizing one hardware I'm utilizing for multiple software. So this is how a Linux server looks like. ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है लिनक्स, इससे ज्यादा कुछ दिखता भी नहीं है। लिनक्स में GUI नहीं होता है। सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू हैव टू डू इज यूजिंग कमांड। इसके ऊपर भी पूरी की पूरी वेबसाइट होस्ट की जा सकती है। एग्जैक्टली जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी विंडोज पे, यू कुड डू दैट सेम थिंग्स, वॉट एवर यू कैन डू हियर ऑन विंडोज सर्वर, सेम चीजें लिनक्स सर्वर पे होती है। इनफैक्ट लिनक्स थोड़ा सा प्रेफरेबल होता है क्योंकि इसमें GUI नहीं है, तो बहुत कम स्पेस लेता है ये। जितने GUI वगैरह, जितना ग्राफिक्स वगैरह होगा, उतना स्पेसिंग ज्यादा लेगा, उतना उसमें पोर्ट्स वगैरह ज्यादा खुलेगी, उतना हैकिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना सिक्योरिटी उसकी लेस होगी। इसमें कोई GUI वगैरह है ही नहीं, बस इट इज डिफिकल्ट टू यूज थोड़ा सा। अनलेस यू नो सम कमांड्स यू आर स्टक हियर। यहाँ पर अगर मैं आपको ये दे भी दूं, आपको कुछ नहीं भी आता तो कुछ ना कुछ तो करके ही देखोगे आप, तो इसको मैक्सिमाइज कर लोगे। यूल ट्राई क्लिकिंग के, चलो यार स्टार्ट में क्या है, हाँ कंट्रोल पैनल थोड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा है, लेट्स ट्राई क्लिकिंग ऑन दिस, दिस पीसी क्या है, राइट क्लिक करके देखते हैं, यू कुड डू समथिंग। तो विंडोज कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है लिनक्स के, और बाकी जो मेजर डिफरेंस है वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। सो दिस इज हाउ अ विंडोज सर्वर लुक्स लाइक। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है विंडोज, लिनक्स जो है किसी का प्रोडक्ट नहीं है, फ्री सोर्स है। दिस इज हाउ अ लिनक्स लुक लाइक। बस इतना ही दिखता है, इसके आगे आपको अगर कोई कमांड पता है देन यू कुड यूज, नहीं पता है यू कैन नॉट यूज, कुछ भी नहीं कर सकते इसके आगे। अगर आप कुछ नहीं पता है यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ये कुछ कमांड है जो जिससे बेसिक चीजें वगैरह आप हम देख सकते हो कि हमारे इसमें डिस्क साइज कितना है, क्या है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर्स, बट अगेन इसमें हम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की भी कोई खास जरूरत है नहीं। जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू गाइस।
बिकॉज यहाँ पिक्चर में ये पूरा यहाँ पर ब्लैक वगैरह कुछ दिख रहा था, तो हाँ वो स्क्रीन पे ब्लैक क्यों दिख रहा था, दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। मे बी वो लिनक्स सर्वर होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ डेटा सेंटर, ऐसे रैक होते हैं, ये सर्वर्स लगे हैं, ये उसकी केबलिंग है, नेटवर्किंग है, ठीक है। ये अगेन सर्वर्स है, इंडिकेटर इस टाइप के कुछ होते हैं, ये ग्रीन 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 है सब कुछ, मतलब ये अच्छे से चल रही है। रेड है मतलब इसमें कोई तो फॉल्ट है। अब इसमें फॉल्ट है तो कोई डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आएगा, ये फॉल्ट का आप लोगों को एक ईमेल आएगा, अलर्ट आएगा किसी तरह का। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अभी मैं एक सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको टीम को एक अलर्ट आएगा कि दिस सर्वर इज नॉट वर्किंग परफेक्टली। सो व्हाट विल यू डू, उस अलर्ट में इसका सर्वर का नाम भी होगा, इस सर्वर का आईपी भी होगा। सो यू सिंपली गो, यू विल ओपन दिस टूल, यहाँ से आप इसको रिमोट लेने की ट्राई करोगे, रिमोट ले लोगे। रिमोट लेने के बाद वो सर्वर आपको ऐसे कुछ दिखेगा, एंड देन यू विल कम एंड सी कि वो रेड मार्क क्यों बता रहा था। मे बी वो रेड मार्क इसलिए बता रहा था कि यहाँ पर मेरा कोई पोर्ट ओपन रह गया, या फिर मे बी मेरे हार्ड डिस्क जो है वो फुल होने आई है, ऐसे किसी रीजन की वजह से वो रेड मार्क बता रहा था। सो देन अकॉर्डिंगली यू विल एक्शन ऑन दिस कि हार्ड डिस्क को बढ़ाना है, क्या करना है। मे बी मैंने ये लगा रखा है कि यार अगर मेरा हार्ड डिस्क 40 जीबी से ज्यादा होता है तो अलर्ट आना चाहिए। सो मे बी दैट वाज द अलर्ट, यहाँ पर 50 जीबी हो गया, सो आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। इस तरह के अलर्ट्स वगैरह आते हैं, दिस इज व्हाट यू गाइस डू इन इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट। इस तरह के बेसिक इस पे आप काम करते हो। नाउ आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ 1000 सर्वर्स, इट कुड बी एन नंबर ऑफ सर्वर्स, ठीक है। नाउ इट कुड बी फिजिकल और वर्चुअल। आई होप अब तक आप लोगों को वर्चुअल और फिजिकल में डिफरेंस समझ में आ गया। फिजिकल सर्वर क्या है, ये एक फिजिकल सर्वर है, इसके ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, सब कुछ डायरेक्टली इसी पे है, दैट इज अ फिजिकल सर्वर। वर्चुअल क्या है, ये एक फिजिकल सर्वर है, इसके ऊपर एक थिन लेयर है, छोटी सी एक लेयर है। ये या तो माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी की लेयर हो सकती है, या VMware की लेयर हो सकती है। जैसे ये लेयर इंस्टॉल करते हैं, ये भी अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है, लेकिन हमारे तरह नहीं, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो द मोमेंट यू इंस्टॉल दिस, इससे आपको फिजिबिलिटी मिल जाती है, एबिलिटी मिल जाती है टू इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन दिस, सो यू कुड हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हियर। सो दिस इज, these are virtual servers, don't go by size, वो ऐसे ही गलती से बन रहे हैं, ठीक है। could be similar size, could be different। I hope ये remember, कल मैंने explain किया था कि अगर इसमें यहाँ पर मेरे पास 16 जीबी है, तो आई कुड डिवाइड इट इक्वली और अनइक्वली, कैसे भी डिवाइड कर सकता हूँ मैं। 10 जीबी इसको देके 2-2 जीबी इन सबको भी दे सकता हूँ, आई कुड डू दैट। मेरे पास 1000 जीबी का डिस्क है, आई कुड गिव 500 जीबी यहाँ पर, 200 जीबी इनको दे सकता हूँ, आई कुड कीप इन स्पेयर ऑल्सो, ठीक है। सो इस तरह का कुछ एनवायरमेंट होता है अब तक, लिविंग क्लाउड असाइड। इस तरह का एनवायरनमेंट जो है कहीं पर होता है। एक स्विगी ऐप चलाने के लिए मुझको 1000 सर्वर्स है, तो उसमें मे बी 400 फिजिकल सर्वर हो गए। फिजिकल सर्वर भी ऐसा नहीं कि पूरे एब्सोल्यूट हो चुके हैं, अभी फिजिकल अभी भी यूज करते हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल सर्वर है जहां पर मुझको वर्चुअलाइजेशन नहीं चाहिए, एकदम अच्छा रिजल्ट चाहिए, आई विल स्टिल गो अहेड विद द फिजिकल सर्वर, बट वर्चुअलाइजेशन भी काफी यूज होता है। सो एक अगर एनवायरनमेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 2000 सर्वर्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उसमें 400 फिजिकल सर्वर्स होंगे और 1600 वर्चुअल सर्वर्स होंगे। एक ये रफ आइडिया है, एक जस्ट रेशो बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड या कोई नॉर्म्स नहीं है। यू कैन हैव ऑल वर्चुअल सर्वर्स, यू कैन हैव ऑल फिजिकल सर्वर्स, यू कैन हैव 50-50%, 10-90, अप टू यू, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। सो नाउ इफ नेवर व्हेनेवर आई से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब समझ जाना कि ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मशीन है, और ये होस्ट, आपका होस्ट जो है वो हार्डवेयर है जिसके ऊपर ये सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। मेरे पास ऐसे फिजिकल वर्चुअल मशीन, सॉरी फिजिकल मशीन, इसका मतलब ये है कि एक सर्वर है, उसके ऊपर एक ही हमारा डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्चुअल मशीन, एक गेस्ट एक होस्ट है, उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हो सकते हैं। यस गाइस, एनी क्वेश्चंस? Are you guys getting anything, getting everything, not getting anything? कोई डाउट नहीं है किसी को अब तक? No, sir. No, sir. Nice, brilliant batch I have got. Either you are getting everything or you are not getting anything. Fine. ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है आई होप। हमने सर्विस डेस्क देखा, हमने एप्लीकेशन सपोर्ट देखा, उसके बिहाइंड एप्लीकेशन में क्या क्या चलता है वो देखा। यहाँ पर हमने काफी एकदम हाई लेवल ओवरव्यू देखा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सर्वर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कोई सर्वर बैकअप के लिए होगे, कोई स्टोरेज के लिए होगे। Guys, this is about to finish. If you guys want a break of 5 minutes, let me know. Otherwise, I'll start without taking any break. ये 10 मिनट में खत्म होगा. We'll start a new session using same link. ओके, सो अब तक हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें किस तरह के इश्यूज आते हैं। बहुत बेसिक चीजें देखी हमने, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं इससे। कोई सर्वर शट डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है,
बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो हम धीरे धीरे देखते रहेंगे जैसे अज्योर की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों का और यहाँ पर क्या है, आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस टू यू गाइस के ये हार्डवेयर जो है ना, इसका मेंटेनेंस काफी कॉस्टली होता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि अगर मेरा हार्डवेयर डाउन हो गया, लेट्स से यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इश्यू है, सो आई कैन टेक रिमोट एंड आई कैन वर्क ऑन दिस। बहुत मेजर इशू है, आई विल सिंपली जस्ट शट डाउन दिस मशीन, और यहाँ पर एक मेरा दूसरा मशीन है मेरे पास बैकअप में, इस पे मैं अपना काम चला लूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर हार्डवेयर में कुछ हो जाता है ना, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, देन समवन विल हैव टू विजिट हियर। और फिर ये सिर्फ मेरे डेटा सेंटर इंजीनियर का काम नहीं होता है, देन इसके बाद अगर वो डेल का सर्वर है तो डेल का भी एक आधा इंजीनियर आएगा। अगर ये आउट इन वारंटी है तो डेल से आएगा, आउट ऑफ वारंटी है तो किसी वेंडर से मैंने वारंटी परचेज कर रखी होगी, कोई थर्ड पार्टी वेंडर जो है वो वारंटी देते हैं वहां पर कि ठीक है आपका ये सर्वर 2 साल तक इसमें है, एक्सटेंडेड वारंटी। आई एम श्योर यहाँ पर भी आप लोगों को पता है, वी टेक इट फॉर आवर मोबाइल, वी टेक इट फॉर आवर लैपटॉप्स। तो एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी थी, उनका कोई इंजीनियर आता है, देन दे विल चेक। तो ये सब काफी टाइम कंज्यूमिंग और पैसा बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट लेवल है वो है क्लाउड। बट बिफोर वे स्टार्ट डिस्कसिंग, थोड़ा सा इसमें और हम ग्रिल कर लेते हैं कि किस तरह के इश्यूज आते हैं हार्डवेयर को लेकर। और अगर ओएस में भी इशू है, स्टिल एक ओएस में भी इशू किस तरह से हमारा टाइम कंज्यूम करता है वो हम देखते हैं। या फिर फॉरगेट इशू, कोई नया भी, लेट्स से दैट आई एम प्लानिंग टू हैव अ न्यू एप्लीकेशन, मे बी स्विगी में ही मैं कुछ और एक नया एप्लीकेशन लाना चाहता हूँ। नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन कंपनी, ठीक है। व्हेनेवर आई से अ न्यू एप्लीकेशन, दैट डज नॉट मीन कि एक नया कंपनी ही मार्केट में आ रहा है। एक कंपनी में भी मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं या मल्टीपल फीचर्स होते हैं, कई बार एक एक फीचर के लिए भी मल्टीपल सर्वर्स लगते हैं। बट लेट्स से कि स्विगी ही जो है अपना स्विगी जिनी के साथ आना चाहता है, सो दे हैव डिसाइडेड कि ठीक है स्विगी जिनी के लिए हम लोगों को 50 सर्वर्स लगेंगे, 50 हार्डवेयर लगेंगे, इसका मतलब है, ठीक है। और लेट्स से कि अब तक वर्चुअलाइजेशन हमारे समझ में आ गया, तो वी आर डिसाइडिंग कि हम 10 हार्डवेयर ले रहे हैं। और लेट्स से ठीक है, इतने हम हार्डवेयर जितने भी है, नंबर 4 8 12 13, 13 हार्डवेयर पे टेकिंग, इसमें से इतने जो है हम डायरेक्टली फिजिकल सर्वर्स यूज करेंगे। ये जो है डायरेक्टली फिजिकल सर्वर्स यूज कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे 100 सर्वर जो मेरा रिक्वायर्ड है, 150 जितने भी सर्वर रिक्वायर्ड है, इसमें से ये मैं डायरेक्टली फिजिकल यूज कर रहा हूँ, और रिमेनिंग को मैं जो है यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन के मेथड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिजिकल सर्वर्स एंड रिमेनिंग ऑल वर्चुअल सर्वर्स आई एम प्लानिंग टू यूज, जितने भी होते हैं। लेट्स से आई रिक्वायर 50, तो मैं 50 ही कर लूंगा। इफ आई रिक्वायर 20, तो वहां पर 8 हो गए, समहाउ 12 वगैरह। नंबर्स वगैरह को कोई कोड करने की ये नहीं, क्योंकि कोई ऐसा सेट स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। बट एक मेरे पास आइडिया आ गया, आई एम रेडी टू गो विथ माय बिजनेस अप एंड रनिंग, सब मेरा मार्केट वगैरह सब कुछ हो गया है, मेरा रिसर्च वगैरह सब कुछ हो गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन बिफोर वी गो टू क्लाउड, मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्लाउड का बेनिफिट समझ में आए, राइट। इंटरव्यू में भी काफी इजी होगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये सारे जो सर्वर्स है, 50 हार्डवेयर सर्वर्स, इसके 50 नहीं, लेट्स से 15 15 हार्डवेयर सर्वर्स और 50 सर्वर के लाइसेंसिंग, देन इसके बाद नेटवर्किंग होगा तो नेटवर्किंग की केबल, अगेन फिर मैंने जितनी चीजें डिस्क्राइब की थी, सर्वर रैक, ये सारा एक बहुत बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मतलब क्या है, मुझको ये सब परचेज करना है ना। बड़ी कंपनियों में परचेज करना मतलब सिंपली ऐसे नहीं होता है कि कोई कैश का बंडल उठाकर लेकर गया और परचेज करके लेके आ गया, वैसे नहीं होगा। ये पूरा का पूरा आपकी मीटिंग में डिस्कस होगा, एक प्रपोजल बनेगा, उसमें फाइनेंस वाली टीम भी होगी, फाइनेंस उसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद जो है कोटेशंस मंगाए जाएंगे, कम से कम 5 से 6 वेंडर से कोटेशंस मंगाए जाते हैं। उसमें से कोई एक फाइनलाइज होगा, देन अगेन वो रिव्यू होगा कि ठीक है ये वेंडर क्या अच्छा दे रहा है, ये वेंडर क्या कम दे रहा है, कौन कितना सपोर्ट दे रहा है, कितना एक्सटेंडेड सपोर्ट दे रहा है, क्या फ्री मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्वालिटी किस तरह की है, वेंडर खुद आके सेटल कर रहा है, मतलब प्लेंटी ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कस। तो अगर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया रेडी है भी, इमीडिएटली रेडी है, जो मुझको लगता है कि अप एंड रनिंग है, ये हो सकता है चलेगा, तो स्टिल ये सब प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 1 महीना लगेगा मुझको। 1 महीने का बिजनेस में ऑलरेडी लूज कर रहा हूँ। एंड ये सब मैं पहले खरीद के रख सकता हूँ कि अगर मैंने मार्केट रिसर्च किया ही नहीं है, उससे पहले ये सब परचेज करना, मतलब आई टोल्ड यू अप्रोक्सीमेटली एक सर्वर में 3 से 4 लाख रुपए मुझको स्पेंड करने पड़ते हैं हार्डवेयर पे। तो यहाँ पर ही अप्रोक्सीमेटली मुझको 30 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, लाइसेंसिंग, रैक और ये सब।
और उसके बाद मार्केट रिसर्च से अगर मुझको ये पता चलता है कि यार इस जो बिजनेस मॉडल में लेकर आया हूँ इसका कोई स्कोप है ही नहीं मार्केट में, आई विल हैव टू ड्रॉप माय आइडिया, तो ये 30 लाख का इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है ये पूरा का पूरा मेरा वेस्ट हो गया। तो वो एक हमेशा से एक जो है एक लूप की तरह से फंसे रहते हैं कि पहले मार्केट रिसर्च करें या पहले ये करें, देन ऑब्वियसली नो वन विल गो अहेड एंड 30 lakhs का स्पेंड कोई नहीं करेगा विदाउट एनी बेस एंड विदाउट एनी डेटा। तो मार्केट रिसर्च करना ही पड़ता है पहले, देन मार्केट रिसर्च करने के बाद यू आर प्रीटी श्योर अबाउट इट, डैम श्योर कि ये 100% चलेगा आइडिया कि मैं कल से भी अगर इसको इस ऐप को मैं खोल दूं ना स्विगी जिनी, कि हाँ कल से लॉकडाउन लगने वाला है एंड मैंने अपनी पूरी स्टडी कर ली है कि स्विगी जिनी बहुत एक प्रॉपर आइडिया है, चलने वाला है, अच्छी कमाई होगी, अच्छा मॉडल, अच्छा रेवेन्यू आएगा, स्टिल यू कैन नॉट गो अहेड एंड डू इट इन अ डे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है आपको पिक्चर्स में ये सारे हर्डल्स रहने वाले हैं कि आपको सर्वर परचेज करना है, आपको सर्वर रैक परचेज करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ये करना है, लाइसेंसिंग फिगर आउट करना है, उस सब की नेटवर्किंग करनी है, उसकी आपको केबलिंग करनी है, उसके लिए नेटवर्किंग वाले लोग हायर करने हैं, विंडोज वाले लोग हायर करने हैं। तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है हायरिंग का। आई एम श्योर यू गाइस नो हाउ इट इज, हाउ इट वर्क्स। आपकी कंपनी आपको 3 महीने से पहले छोड़ नहीं रही है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग इंडियन मार्केट, ठीक है। आपकी कंपनी आपको 3 महीने से पहले छोड़ नहीं रही है, अदर कंपनी को आप इमीडिएटली चाहिए होते हैं, कोई इमीडिएटली कोई डेट देकर भी बाद में हायर पैकेज के लिए भाग जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स भी एक बड़ा फैक्टर है उसमें, ह्यूमन रिसोर्स है, परचेसिंग है, तो ये कम से कम 3 से 4 महीने काम टल जाता है। और मेरा बिजनेस मॉडल ही शायद ऐसा था कि यार ये 4 महीने तो लॉकडाउन रहने वाला था, इसी में मुझको कमाना था। तो जस्ट बिकॉज़ आई डिड नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए मैंने करोड़ों का अपना रेवेन्यू जो है लॉस कर दिया। ठीक है, सो दीज आर द challenges which we used to face or which we still face। इसको इसमें कैसे हम ओवरकम करेंगे क्लाउड में, दैट विल लर्न, धीरे धीरे इसको हम सीखेंगे। ठीक है, एंड लेट्स से चलो ये सब हो भी गया, आपने परचेस वगैरह कर भी लिया, आपने परचेसिंग वगैरह सब कर भी ली, बट स्टिल एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में ही जो है ना काफी टाइम लगता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में और उसमें जितने सॉफ्टवेयर वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में काफी टाइम लगता है। नाउ दिस सेशन विल एंड, इसके बाद जब सेशन शुरू करेंगे सो आई विल शो इट टू यू गाइस कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है कैसे, एक सर्वर इंस्टॉल कैसे होता है। एक ही बार करेंगे हम बस, इसके बाद नहीं करने वाले, क्योंकि जब हम क्लाउड पे जाते हैं ना वी विल नॉट गेट टू सी दिस। क्लाउड में आपको बना बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है, सो यू विल नॉट इवन कम टू नो के बैकग्राउंड में चलता कैसे। इसलिए आई वांट यू टू एक्सपीरियंस दिस वंस। सो पोस्ट दिस सेशन, मतलब ये जो 2 मिनट का खत्म हो रहा है, इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो वी विल सी वन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, वन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। So whoever they feel that they're comfortable, जिनका रोज का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, they feel free to drop, they it's okay if they don't rejoin। ठीक है, सो अगर ये सब हो भी गया तो एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये स्टिल मैंने बहुत एक अ, बहुत ज्यादा हाई लेवल बताया। इसमें जब नेटिविटीज में जाते हो ना आप तो बहुत सारी चीजें आती है, इसमें कंप्लायंस भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रूल्स ये वो बहुत सारी चीजें होती है। सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक इस पे ऑन प्रीमाइसेस पे लाने के लिए, हाँ बाय द वे दिस इज कॉल्ड ऑन प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बी इट वर्चुअल और फिजिकल। ऑन प्रीमाइसेस का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा डेटा सेंटर है ये मेरे मेरे किसी लोकेशन पे मैंने होस्ट कर रखा है, नॉट नेसेसरी कि मेरी बिल्डिंग में ही हो। लेट्स से माय ऑफिस इज इन मगरपट्टा बट मेरा डेटा सेंटर है इयन खराड़ी में, इट इज पॉसिबल दैट ऑन प्रीमाइसेस का मतलब नेसेसरी ये नहीं है कि उसी बिल्डिंग में होना चाहिए उसी फिजिकल एड्रेस पे, बट ऑन प्रीमाइसेस का मतलब कि ये सब का ध्यान मैं दे रहा हूँ, हार्डवेयर एसी ये सब का ध्यान मैं दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑन प्रीमाइसेस। नाउ विल सी क्लाउड क्या है। आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन हियर एंड आई विल रीजॉइन। डू यू गाइस वांट अ ब्रेक ऑफ 5 minutes or should we continue? I think we can continue. Can continue. Okay, I'll stop this and start it with the same link. I will paste the link if you guys want. WhatsApp ग्रुप में मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको।